جب مسجد بھر گئی تو کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، جگہ نہیں تھی، جیسے جگہ نہیں تھی یہاں بھی کچھ بھائی لوگ کھڑے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے کہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، پیروں میں تکلیف ہے پھر بھی سن رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور اپنے صحابہ سے بہت پیار کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو پیار آیا، آقا نے فرمایا جو جہاں جس حالت میں وہیں بیٹھ جائے، سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی جنگل گئے ہوئے، وہ حضور کے بیان میں نہیں آئے تھے، وہ حضور کے محفل میں نہیں تھے، وہ جنگل گئے ہوئے، جنگل سے واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے تو ان کے سر پہ لکڑی کا گٹھا سر پہ لے کر وہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اور جس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں بیٹھے، تو وہ صحابی مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، اندر نہیں تھے، محفل میں نہیں تھے، باہر سے گزر رہے تھے، وہ روڈ پر راستے پر لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ محفل ختم ہوئی، فاروق اعظم اپنے گھر جانے لگے تو ان کو دیکھا، وہ فاروق اعظم تھے، کسی کو بھی غلطی پر دیکھتے تو فوراً ٹوکتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو فاروق اعظم نے ان کو کہا ارے راستے میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، راستے میں کوئی بیٹھتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، راستے میں نہیں بیٹھا کرتے۔ انہوں نے کہا عمر میرے بھائی اللہ تم پہ رحم کرے، یقیناً راستے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جہاں جس حالت میں ہے وہی بیٹھ جائے۔ تو جب حضور کی آواز میرے کان میں آئی میں یہی بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا بھلے انسان، اللہ کے بندے، حضور نے مسجد کے اندر والوں کو کہا تم کو نہیں کہا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ حضور کا خطاب اندر والوں سے تھا، مجھ سے نہیں تھا، مگر میں کیا جانوں اندر والا اور باہر والا۔ عشق کا تقاضا یہ ہے محبوب کی آواز میرے کان میں آ گئی، اب عمل کرنا میرے لیے فرض ہو۔ لازم ہو گیا، اب جب تک محبوب نہیں اٹھائیں گے میں یہاں سے اٹھنے والا ہوں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یقیناً یہ بات ان کو حضور نے نہیں کہا تھا، ان کو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کیا عشق دکھایا؟ کان میں آواز پہنچی، عمل کیا، یہ عشق ہے۔ اب ہمارے کان میں بھی آواز ٹکراتی ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر دن پلان بناتے کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، بتاؤ کتنے کل آ رہے ہیں، کتنے کل جا رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، یاد رکھنا یہ رات دن جو محنت کر کر کے مال کما رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، بچوں کی شادیاں کر رہے ہو، کپڑے سلا رہے ہو، موبائل خرید رہے ہو، کھیت کھلیان خرید رہے ہو، اچھی اچھی سواریاں خرید رہے ہو، مرنے کے بعد سب یہی رہ جائے گا۔ تمہارے باپ دادا مرے کیا ساتھ لے، کوئی ساتھ لے؟ بڑے بڑے مالدار مرے کیا ساتھ لے گئے؟ بڑے بڑے بادشاہ مرے کیا ساتھ لے گئے؟ ہم بھی مریں گے، سب نہیں چھوڑ، بینک بیلنس یہی رہے گا، زمین جائیداد یہی رہے گی، ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ اور ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اور اگر اپنے کفن میں کچھ لے گئے یا تو تمہارا اچھا عمل ہوگا یا تو تمہارا برا عمل ہوگا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، رات رات بھر، دن دن بھر، بلکہ لوگ مال کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی کویت تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی ممبئی، دلی، کلکتہ تک جا رہا ہے۔ بولو مال کمانے کے لیے کہاں تک جا رہے ہو؟ جو مال پڑا رہے گا اس کے لیے کلکتہ، دبئی اور سعودی تک جاتے ہو، اور جو نماز کفن میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی، جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ کیا کوئی یہ بھی کہتا ہے مال کمانے ٹائم نہیں ملتا، مال جمانے ٹائم نہیں ملتا، گھر بنانے ٹائم نہیں ملتا، کپڑے سلانے ٹائم نہیں ملتا، موبائل خریدنے ٹائم نہیں ملتا؟ نادان، جو یہاں پڑا رہے گا اس کے لیے ٹائم ہے، اور جو
जो कब्र तक जाना है उसके लिए कोई टाइम नहीं। हमसे बड़ा नादान कौन, हमसे बड़ा नादान कौन, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन। याद रखना जब मौत आएगी तो रोओगे, पछताओगे, हाथ मसलते रह जाओगे और कहोगे हाय दुनिया की मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे नादान अब पछताने से काम नहीं चलेगा, वक्त चला गया, वक्त गुजर गया। मैं ये नहीं कहता कि माल न कमाओ, मैं ये नहीं कहता घर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कपड़े न सिलाओ, मैं ये नहीं कहता अच्छे मोबाइल न खरीदो। मैं तो ये कहता हूँ अच्छे मोबाइल भी खरीदो, अल्लाह ने दिया है, अच्छे कपड़े भी पहनो, अच्छी सवारियां भी इस्तेमाल करो, लेकिन अल्लाह की इबादत से गाफिल मत रहना। इसलिए कि दुनिया में क्यों आए हो, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंस और जिन को हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे अजीज भाई, ये यहाँ की गर्मी आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे भी नहीं हो रही है। ये तो आपकी मोहब्बत रसूल है कि आप धूप में गर्मी में बैठे हो, लेकिन ये बर्दाश्त वाली गर्मी नहीं है। सोचो तो सही, थोड़ी देर तसव्वुर करो, थोड़ी देर के लिए गौर करो। मैदान की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी बयान खत्म हो और हम अपने अपने घरों को जाएं, पंखों में बैठे, एसी में बैठे। मेरे भाई बता, चाहे मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, बहनें भी धूप में बैठी हैं, कोई मुंह पर हाथ रखकर, कोई सर पे हाथ रखकर, ये भी सब परेशान है। लेकिन एक बात गौर करना, जरा तसव्वुर करना, अगर वाकई मरने पर यकीन है तो तसव्वुर करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हमें मैदान की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो कब्र की गर्मी हमसे कैसे बर्दाश्त होगी। वो कब्र अल्लाहु अकबर, यहाँ ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, आगे मिट्टी है, पीछे मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। वहाँ मौलाना साहब के लिए भी रियायत नहीं, इमाम साहब के लिए भी रियायत नहीं, लीडर के लिए भी रियायत नहीं, नेता के लिए भी रियायत नहीं। वहाँ किसी का कुछ नहीं देखा जाएगा, न किसी की खूबसूरती, न किसी का नसब, न किसी की डिग्री, न किसी का इल्म। वहाँ क्या देखा जाएगा? दो चीजें, ईमान और अमल। अगर ईमान और अमल है तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, और अगर ईमान और अमल नहीं होगा तो फिर अल्लाहु अकबर। जानते हैं अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक सच्चे आका ने इरशाद फरमाया, कब्र में इतना अंधेरा होता है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। नेक अमल नहीं किया है, नमाजों के वक्त में मोबाइल पर गेम खेलता था, नमाजों के वक्त में दोस्तों की सोहबत में बैठता था, नमाजों के वक्त में क्रिकेट देखता था, नमाजों के वक्त में कारोबार में लगा रहता था, नमाजों के वक्त में खेल कूद में और इधर उधर वक्त बर्बाद करता था। ये कफन जो कफन है, कफन वो भी आग बन जाएगा, कफन भी आग की चादर बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा तो करो, जरा सोचो तो सही, अगर दुनिया का लीडर कहता हम हंस कर उड़ा देते। अगर कोई दुनिया का लीडर कहता हम हंस कर उड़ा देते, अगर कोई खतीब कहता हम सोचते चलो इनका काम नहीं। लेकिन ये कौन कहता है? अल्लाह के रसूल, जिसने अपनी तबीयत से कभी बात नहीं की, जिसने अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू नहीं की, ये जब भी बोलते अल्लाह के हुक्म से बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे भाइयों, अब जरा गौर करो, जरा सोचो, जरा गौर करो। जब कफन जहन्नम की चादर बन जाएगा, आग की चादर, उस वक्त हमारा क्या होगा? किसको पुकारेंगे? ये अपनी औलाद, जिन औलादों के लिए झूठ बोल बोल के कमाओ, मना नहीं, झूठ बोल के मत कमाओ। औलाद की खातिर अल्लाह को नाराज मत करो, दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। लोग, बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे के माँ बाप की मगफिरत की दुआ भी नहीं करते। हम तो देख रहे हैं जीते जी जो औलाद माँ बाप के काम ना आए वो मरने के बाद करता है। अगर माँ बाप को बीमारी हो जाए, माँ बाप को अगर बीमारी हो जाए, बीमारी और ज्यादा पैसे लगने लगे, तो एक बेटा बोलता है कि तेरा बाप नहीं तू खर्चा कर, दूसरा बोलता है तेरा बाप नहीं तू खर्चा कर, तीसरा बेटा बोलता है तेरा बाप नहीं तू खर्चा कर, बेटा बोलता है तेरी माँ नहीं है तू खर्चा कर। सोचो, जो औलाद जीते जी
माँ बाप की बीमारी के लिए कोशिश न करे, वो मरने के बाद जहन्नम से बचाने की क्या कोशिश करे। गौर तो करो कि दुनिया बेवफा है, इस बेवफा दुनिया के लिए वफा पैदा करने वाले खुदा से बेवफाई मत करो। इस बेवफा दुनिया के लिए जाने वफा रसूलुल्लाह से बेवफाई मत करो। अपनी आखिरत की फिक्र करो। नमाज को छोड़कर जन्नत में जाओगे, ये खाम ख्याल है। ये मेरे उलमा बैठे हुए हैं, ये सच्चे लोग हैं, बाअमल लोग हैं, अल्लाह वाले, इनसे पूछो। अगर तुम्हें कोई आकर कहता है ना इसका मुंह देखो और जन्नत में जाओ, और उसका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, और एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत में जाओ, ये सब तुम्हारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ अगर चेहरे दिखाकर सिर्फ जन्नत मिलती बगैर नमाज के, बगैर अमल के, तो आप तो इनके हमारे चेहरे देख रहे हैं। सहाबा ने तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, सहाबा ने तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। अगर कोई आकर के ये कहता है कि अमीनुल कादरी का दामन पकड़ो सीधे जन्नत में जाओ, झूठ बोल रहा है। अगर बेअमली से किसी का भी दामन जन्नत में ले जाता, अरे तुम तो उम्मतियों का दामन पकड़ रहे हो। सहाबा का पीर तो अंबिया का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बावजूद भी सहाबा ने कभी एक वक्त की नमाज तर्क नहीं की। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि दामन नहीं पकड़ना चाहिए, हमने भी पकड़ा बुजुर्गों का दामन। मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों का चेहरा बेफैज होता है, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर फर्ज पहले नंबर पर है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर किसी का दामन पकड़ना तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। आप किसी का भी दामन पकड़ो। आप गौस पाक की बात करते हैं, हमने गौस पाक का दामन पकड़ा। अगर बेनमाजी हो तो गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमान के कब्रिस्तान में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वही गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे दाखिल कर लेंगे, अपने सिलसिले में कैसे कबूल कर लेंगे। याद रखना, अगर आपको बुरा लगे तो सिटौली वालों और करीब कुर्ब जवान से आने वालों मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। लश्कर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। कब्र में आपकी मर्जी से फैसला नहीं होगा, कब्र में तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा। मेरे भाई मुझे पता नहीं, अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जरा गौर तो करो कब्र क्या है, कब्र क्या है, थोड़ा गौर करो। सहाबा जैसे कोई लोग है, हम अहले सुन्नत के अकीदे में सहाबा से बड़ा कोई वली, कोई वली नबियों के बाद सबसे बेहतरीन कौन? सहाबा। सही। एक सहाबी उनका विसाल हुआ, तवज्जो, एक सहाबी का विसाल हुआ। कौन सहाबी? जिनको मेरे आका ने सैयदुल अंसार फरमाया। कौन? हजरत साद, उनको हुजूर ने सैयदुल अंसार फरमाया। एक बात। दूसरा, आका फरमाते साद के इंतकाल पे अर्श झूमा। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, एक तो सहाबी, जिसको सहाबी कह दिया मतलब अब नबियों के बाद सबसे बड़ी बुजुर्गी जिसको मिली वो कौन? और सहाबा में भी कौन? सैयदुल अंसार हजरत साद, जिसके विसाल पर अर्श झूम रहा है। मोमिन की मौत पे अर्श खुश होता है। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयब वो ताहिर गया। और वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाही के वो फाजिर गया। सैयदुल अंसार, जिसकी मौत पे अर्श झूमा। और आका फरमाते साद की मौत के वक्त 70,000 फरिश्ते जमीन पे नाज़िल हुए। ठीक बात इतनी समझ। अब उनके जनाजे में अल्लाह के रसूल खुद थे, उनके जनाजे में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले। जिसके जनाजे में हुजूर जाएं, क्या उनको दफन किया गया, कब्र में रख दिया गया। ठीक, जब कब्र में रखा गया तो हदीस पाक में आता है कि हुजूर उनकी कब्र पर खड़े हुए
थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान करें। कोई तकरीर नहीं है, कोई किताब नहीं, सिर्फ किसी के दिल के दर्द, किसी के दिल की आवाज, अपना भला चाहते। दुनिया में खेल-कूद के लिए नहीं है, दुनिया में जिना शराब के लिए नहीं है, दुनिया में नाच गानों के लिए नहीं है, दुनिया में डीजे बजाने उछल कूद करने नहीं आए, दुनिया में सूद के धंधे करने नहीं आए, दुनिया में हराम खाने नहीं आए, दुनिया में औरतों पर पाप की नजरें डालने नहीं आए। दुनिया सब नहीं है, आखिरत सब कुछ है। ऐसी हस्ती सैयदुल अंसार जिसके विसाल पे अर्श झूमे, 70,000 फरिश्ते जमीन पे आए। फरिश्तों का जमीन पे आने से बड़ी फजीलत उनकी ये है कि उनके जनाजे में खुद हुजूर तशरीफ ले गए, उनकी कब्र पर हुजूर खड़े। सहाबा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हमने देखा कि आसार नजर आए, हुजूर का चेहरा बदल गया, हुजूर के चेहरे पर तब्दीली के आसार, तब्दीली के आसार, हुजूर के चेहरे पे तब्दीली के आसार नजर आए। सहाबा कहते हैं घबरा गए, हुजूर के चेहरे पे तब्दीली के आसार। फिर हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर तकबीर पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। फिर कुछ देर गुजरी, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार। सहाबा किराम ने उसकी आका या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, साद की कब्र पर जब आप खड़े हुए तो आपके चेहरे पर आसार जाहिर हुए, कुछ गम के आसार, चेहरे मुबारक मुतगय्यर हो गया, तब्दील हो गया। हुजूर क्या हुआ था? हुजूर आका फरमाते हैं जब साद को उसकी कब्र में रखा गया, अब हुजूर देखो कैसे उनकी मर्तबत है। फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर, यानी वो बद नहीं जिसको हुजूर ने कहे, ये जलसे का नाज़िम किसी को नेक नहीं कह रहा, सैयदुल आलमीन ज़बान माँ औहा से जिसको नेक कहें, फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र कब्र हो गई। किसकी बात? सहाबी रसूल, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैयदुल अंसार का लक़ब रखा, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे। आका फरमाने तुम्हारे इस भाई पर कब्र कब्र हो गई थी, इसकी कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, तब मेरे चेहरे पर तब्दीली के आसार देखे। मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद की, तो अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। उनका मसला तो हल हो गया, हुजूर ने तकबीर पढ़ी, उनकी कब्र कुशादा हो गई। फरमाया गया अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो वो जनाबे साद थे, लेकिन कब्र ने उनको भी दबाया। तो जो अब बहुत ये जो हमें घमंड है ना, घमंड कि फजर के वक्त नापाक बिस्तर में पड़े रहते हो जनाबत की हालत में, और फिर घमंड से हम जन्नत में जाएंगे। जरा थोड़ी देर सोचो ना, सही गौर तो करो। हजरत साद को उनकी कब्र किस चीज का है? देखिए शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। क्या ये हदीस में नहीं है? पूछो इन लोगों से, ये अल्लाह वालों से पूछो जो पढ़ते पढ़ाते हैं, दर्स और तदरीस से जिनका ताल्लुक है, जो स्याह सिक्का लेकर बैठ कर पूछो हजरत साद को कब्र शरीफ में दबाया और हुजूर ने तकबीर, और वो कब्र के दबाने को देखकर हुजूर के चेहरे पे गम के आसार। अब आप सोचिए जब सहाबी को कब्र इस तरह से दबा सकती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो देखा मंजर, तो अमीनुल कादरी की क्या, आपकी क्या हैसियत? वो बेनमाजी नहीं थे, साथ नमाजी थे, और वो भी कैसा इमाम मिला था उनको। कोई जामा मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, कोई सैयद के पीछे नमाज पढ़ता है, कोई आलिम के पीछे नमाज पढ़ता है, कोई वली के पीछे नमाज पढ़ता है, किसी ने मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम के पीछे नमाज पढ़ी है। साद उस मुकद्दर वाली हस्ती का नाम है जिसने नबियों के इमाम की इब्तिदा में नमाजें पढ़ी थी। साद ऐसे नमाजी थे, साद ऐसे नमाजी, हुजूर उनको नेक होने का मौका देता, लेकिन कब्र ने उनको दबाया। हुजूर ने तस्बीह पढ़ी और अल्लाह ने उनकी कब्र खुशा
कभी ख्याल नहीं आता रात के वक्त जिना का मंजर देखते हुए जब सहाबी को कब्र अनवर इस तरीके से अपनी आगोश में दबा रही है तो हमें किस तरह दबाएगी और हमें किस तरह दबाए जब उसको सुन लो। वो तो सहाबी थे। नेक लोगों को कब्र ऐसे दबाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लेके दबाती है। माँ कैसे दबाती है वैसे कब्र। मैं ये नहीं कह रहा कि बताओ ये सजा दबाया ये किया, मेरी बात का गलत मतलब मत ले। कुछ लोग कीड़ों के काट के उसके गलत मतलब निकालते हैं, उनका हिसाब तो अल्लाह की अदालत में होगा। लेकिन मैं आपकी नसीहत के लिए बात कह रहा हूँ। नेक लोगों को कब्र कैसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से मोहब्बत में चिमटाती है ऐसे, लेकिन दबाती जरूर है कब्र। और मेरे आका फरमाते हैं जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है, जिस नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है पढ़ने की नमाज, आज मिलाद के जलसे में तय करके उठना, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो आंधी हो तूफान हो शादी हो मौत हो मैयत कुछ हो, नमाज अगर मुसलमान हो तो कभी नमाज बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे मरने के बाद। कोई बहुत बेवफा है दुनिया, बहुत गद्दार है, जिनके लिए रात रात भर बैठते हो ना, लोग जनाजे में नहीं आते। जनाजे में कोविड में हमने देखा, बहुत छोटी सी उम्र में अल्लाह ने बहुत कुछ दिखाया हमको। कोविड में देखा बाप के जनाजे में बेटे शरीक नहीं हुए। क्यों? बाप को कोविड था, बेटों ने कंधा नहीं दिया कि हमें कोविड न हो जाए। जिस बाप के 4-4 बेटे 8-8 बेटे, मेरे अपने मालेगांव में मेरे शहर में पोते भी जनाजे में नहीं, बेटे भी जनाजे। मेरे एक दोस्त हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने कोविड वालों को गुस्ल तक दी, कोविड वालों को भी गुस्ल दी। अब जिनके यकीन पुख्ता थे, उस दोस्त ने मुझे बताया कि एक बड़े मियां का इंतकाल हुआ, वो कोविड में नहीं मरे थे, लेकिन बहरहाल अफवाह फैल गई थी कि कोविड में। उस वक्त तो जो जैसे मरा लोगों ने कहा कोविड में मर गया। गुस्ल अकेले दे रहे थे, बड़े बेटे को बुलाया, थोड़ा पानी डाल दो। नहीं मौलाना आप करो ना जरा। यानी बाप के मैयत पर बेटा पानी डालने आगे नहीं बढ़ा। किस दुनिया से दिल लगा रहे मेरे भाई हैं? अल्लाह को छोड़ के उनसे दिल लगा रहे हो। बेटा कहे मुझे गाड़ी चाहिए, आप ला दे। बेटा कहे मुझे मोबाइल चाहिए, ला दे। बेटा कहे मुझे ये चाहिए, ला देते हो। अल्लाह फरमा रहा है मुझे ये चाहिए, कर रहे हो। अल्लाह के हुक्म पे अमल की फला क्यों? ये बेवफा। और ये 20 साल तक 100 साल एक भी